welcome back. I am Vandana and we are learning Science of Class 2. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is the book Innovators Science. Today we are going to start with chapter number 7, Housing and Clothing. Let's move on to intended learning outcomes. So we will learn about types of houses, roofs of houses, characteristics of a good house and clothes. So these all topics we are going to cover here. Let's move on to kick off. So like birds and animals, human beings also need a place to live in. So जैसे birds और animals को घर चाहिए रहने के लिए, वैसे human beings को भी जो है घर चाहिए रहने के लिए. They live in houses, ये houses में रहते हैं. And a house can be big or small. ये जो house है ये बड़ा या फिर छोटा हो सकता है. A clean house helps us to remain healthy and happy. जो एक साफ सुथरा घर है वो हमें healthy और happy रहने में help करता है. Now let us learn about it. चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं. Let's move on to Funtopia. So here you have to identify and write what each one is doing. Choose from the words given here. आपको बताना है कि यहाँ पे जो लोग हैं क्या काम कर रहे हैं. And यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से हमें चूज करना है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गार्डनर है जो क्या कर रहा है. अ गार्डनर इज मेंटेनिंग द गार्डन. नेक्स्ट, सौरभ इज डैश हिज टॉयज. सौरभ क्या कर रहा है. ऑर्गेनाइज कर रहा है. सो सौरभ इज ऑर्गेनाइजिंग हिज टॉयज. नेक्स्ट, Dad is dash his car. Dad क्या कर रहे हैं. Dad is washing his car. Dad अपने कार को wash कर रहे हैं. Next one, a man is dash the floor. Floor को क्या कर रहे हैं. mop कर रहे हैं. So a man is mopping the floor. So these are the answers that you have to write. So all the living beings need a house to live in. जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सबको एक घर चाहिए रहने के लिए. आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स. हमारा जो घर है वो हमें गर्मी से, सर्दी से, रेन से और वाइल्ड एनिमल्स से बचाता है. वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल इन आवर हाउस. हम अपने घरों में सेफ और कंफर्टेबल फील करते हैं. लेट्स मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ हाउसेस. So people live in different types of houses depending upon their needs. लोग जो है अलग अलग तरीके के घरों में रहते हैं अपने needs के according. So पहला आता है permanent house. So people who live at one place for a long time build permanent houses. ऐसे लोग जो एक ही जगह पे बहुत लंबे समय तक रहते हैं वो permanent घर बनाते हैं, permanent house बनाते हैं. Permanent houses are of two types. ये दो तरीके के होते हैं, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. सो चलिए देखते हैं क्या है कच्चा हाउस. सो कच्चा हाउसेज आर मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ, ड्राई लीव्स, बैम्बू एंड काउ डंग. ये जो कच्चा हाउसेज हैं ये मड से, मिट्टी से, स्ट्रॉ से, सूखे हुए पत्तों से, बैम्बू से और गोबर से, गाय के गोबर से बनते हैं. These houses are not very strong. ये काफी स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. And they are usually found in villages. ये villages में पाए जाते हैं. Hut is an example of कच्चा house. यहाँ पे आप देख सकते हैं hut जो कि एक example है कच्चा house का. Next आते हैं पक्का houses. So पक्का houses are made up of brick, stone, cement, iron and steel. ये जो घर है ये brick से, stone से, cement से, iron से और steel से बनते हैं. Their doors and windows are made up of wood and glass. इनके जो door और window है ये wood से और glass से बनते हैं. These houses are very strong. ये जो घर है ये काफी ज्यादा strong होते हैं. And these houses are found in towns and cities. ये जो घर है ये towns और cities में पाए जाते हैं. तो यहाँ पे आप picture देख सकते हैं कच्चा house की. Let's move on to just a heads up. So modern houses are often made up of prefabricated parts. So आजकल के जो घर बनते हैं वो prefabricated parts से बनते हैं that are partly built in a factory. जो थोड़े बहुत फैक्ट्री से बन के आते हैं and are easy to put together at the site of the buildings. और बिल्डिंग के साइड पे जो है बहुत आसानी से लगाए जाते हैं. So now let's move on to twisting time. Here you have to fill in the blanks.
So here the first one is pakka houses are found in towns and cities. Second, kacha houses are found in villages. Third, pakka houses are very strong. And the fourth one is kacha houses are also called permanent houses. So these are the answers. Now let's move on to temporary houses. So some people live at one place for a short period. कुछ लोग जो क्या करते हैं किसी जगह पे थोड़े दिनों के लिए रहते हैं. They move from place to place. ये जगह बदलते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं. They build houses that can be moved from one place to another easily. ये क्या करते हैं, ये ऐसे घर बनाते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से पहुंच जाते हैं. And such houses are called temporary houses. ऐसे घरों को हम temporary houses कहते हैं. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. तो पहला आता है टेंट. टेंट इज मेड अप ऑफ कैनवस. टेंट जो है कैनवस से बनता है. ये देख सकते हैं आप, ये कैनवस है, ये एक तरीके का कपड़ा होता है. अ टाइप ऑफ क्लॉथ एंड इट कैन बी मूव्ड एंड फिक्स एट अदर प्लेसेस. जैसे मूव कर सकते हैं, दूसरी जगह पे हम फिक्स कर सकते हैं. पीपल पुट अप अ टेंट व्हेन दे कैंप आउट इन द ओपन. लोग जो है टेंट तब लगाते हैं जब वो ओपन में कैंपिंग करते हैं. नेक्स्ट कम्स कैरावन. सो इट इज अ हाउस ऑन व्हील्स. ये जो है एक घर है जो व्हील्स पे चलता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं. एंड इट कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजिली. ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से ले जाया जा सकता है. जिप्सीज लिव इन सच मोबाइल हाउसेस. ऐसे जो छोटे घर है जिन्हें हम मोबाइल हाउसेस कहते हैं, ऐसे में जिप्सीज रहते हैं. नेक्स्ट आता है हाउस बोट. सो इट इज अ काइंड ऑफ फ्लोटिंग हाउस. ये एक तरीके का फ्लोटिंग हाउस है. एंड इट इज मेड अप ऑफ वुड. ये लकड़ियों से बनता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं. इट इज फाउंड इन द लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर के लेक्स में आपको ये घर देखने को मिलेगा. नेक्स्ट आते हैं इग्लू. इट इज मेड अप ऑफ स्नो. ये स्नो से बनता है, बर्फ से बनता है. एंड इन्यूट्स लिव इन इग्लूज. इन्यूट्स जो हैं ये क्या करते हैं, इग्लूज में रहते हैं. इट इज फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस. ये जो है बहुत ठंडी जगहों पे पाया जाता है. इट हैज अ लॉन्ग टनल एंड अ डोम शेप्ड. सो इसमें आपको एक लंबा सा टनल दिखेगा और ये डोम के शेप के होते हैं. नेक्स्ट कम्स जस्ट अ हेड्स अप. So the disinfectant used in water for mopping the floor kills germs. So आपने देखा होगा मम्मी जब पोछा लगाती है घर में तो उसमें फिनाइल या कोई और चीज डालती हैं जिसे डिसइंफेक्टेंट कहते हैं. So ये क्या काम करता है, ये जो है जो भी जर्म्स रहते हैं फ्लोर में उन सबको मार देता है. नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट रूफ्स ऑफ हाउसेस. सो हाउसेज में अलग अलग तरीके के हमें रूफ्स मिलते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूफ्स. अलग अलग हाउसेज जो है वहां पे आपको अलग अलग तरीके के रूफ्स मिलेंगे. द काइंड ऑफ रूफ डिपेंड्स ऑन द प्लेस वेयर द हाउस इज बिल्ट. किस तरीके का रूफ है वो डिपेंड करता है कहाँ पे वो घर बनाया गया है. तो पहला आता है फ्लैट रूफ. यहाँ पे आप देख सकते हैं छत एकदम फ्लैट है. So the houses in plains usually have flat roofs made of concrete. So plain area में जो घर है वहां के roofs आपको flat मिलेंगे, concrete से बने हुए. Flat roofs can also be made up of tiles. ये जो roofs हैं ये tiles से भी बन सकते हैं. Next आता है sloping roof. ये देख सकते हैं ये sloping roof है जो नीचे की तरफ slope कर रहा है दोनों तरफ से. So houses on hills and mountains have sloping roofs. वो घर जो hills और mountains पे बनते हैं उनमें आपको sloping roofs मिलेंगे. Because sloping roofs help rain water and snow to fall off easily. क्योंकि ये roofs क्या करते हैं, rain water और snow को बहुत ही आसानी से नीचे गिरने देते हैं. Next आता है thatched roof. So the houses in village that is huts usually have thatched roofs. So वो घर जो विलेजेस में पाए जाते हैं उसमें आपको thatched roofs मिलेंगे to keep the heat और cold away. जिससे जो है heat और cold जो है बाहर चला जाता है. Next, let's move on to characteristics of a good house. अच्छे घर की क्या क्या characteristics होती हैं. So a good house should be clean and airy. जो अच्छा घर होता है वो clean और airy होता है. It should have big doors and windows
फॉर एयर एंड लाइट, इसमें बड़े बड़े डोर्स और विंडोज होते हैं जिसमें से एयर और लाइट पास ऑन होते हैं. इट शुड हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पे आपको प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मिलेगा. इट शुड हैव सेपरेट रूम्स फॉर वेरियस पर्पसेज, यहाँ पे आपको अलग अलग रूम्स मिलेंगे अलग अलग पर्पसेज के लिए. इट शुड हैव इनफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यहाँ पे आपको काफी ज्यादा अमाउंट में जो है वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलेगा. लेट्स मूव ऑन टू क्लोथ्स. सो वी वियर क्लोथ्स टू कवर अवर बॉडी, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए हम क्लोथ्स जो है वियर करते हैं, पहनते हैं. एंड दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, ये हमें हीट, कोल्ड और रेन से बचाते हैं. वी मस्ट वियर क्लीन एंड वेल आयरन क्लोथ्स, हमें जो साफ सुथरे अच्छे से प्रेस किए हुए कपड़ों को ही पहनना चाहिए. वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, और अलग अलग समय जो होता है डे का उसमें हम अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं. वी वियर आवर यूनिफॉर्म टू गो टू स्कूल, जब हम स्कूल जाते हैं तो हम यूनिफॉर्म पहनते हैं. वी वियर ट्रैक पैंट्स एंड अ शर्ट व्हाइल गोइंग आउट टू प्ले, जब हम बाहर खेलने आते हैं तो हम ट्रैक पैंट्स पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं. वी वियर टी शर्ट एंड शॉर्ट्स व्हाइल एट होम, घर पे रहते हैं तो टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनते हैं. वी वियर अ नाइट सूट व्हाइल स्लीपिंग एट नाइट, रात में सोते समय हम नाइट सूट पहनते हैं. सो ये अलग अलग कपड़े पहनते हैं हम दिन के अलग अलग टाइम पे. वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स ड्यूरिंग द डिफरेंट सीजन्स ऑफ द ईयर, तो साल में अलग अलग सीजन्स आते हैं, उस समय हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं. वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, समर में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. वी वियर वार्म वुलन क्लोथ्स इन विंटर, हम वार्म वुलन क्लोथ्स पहनते हैं विंटर में. वी यूज रेन कोट्स एंड गम बूट्स ड्यूरिंग द मानसून, हम मानसून के समय रेन कोट्स और गम बूट्स पहनते हैं. तो ये अलग अलग कपड़े हम पहनते हैं. लेट्स मूव ऑन टू जस्ट अ हेड्स अप. सो मोथ्स कैन डैमेज वुलन क्लोथ्स, मोथ्स क्या करते हैं, ये वुलन क्लोथ्स को डैमेज कर देते हैं. स्टोरिंग वुलन क्लोथ्स अलोंग विथ नीम लीव्स कीप्स मोथ्स अवे, अगर हम जो है वुलन क्लोथ्स को स्टोर करते हैं नीम लीव्स के साथ तो उससे क्या होता है, जो मोथ्स हैं वो दूर चले जाते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेक टीचिंग फन. सो वाटर हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट, वाटर क्या करता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने में मदद करता है. वी मस्ट ड्रिंक अराउंड 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, हमें जो है 8 ग्लासेस तक पानी जो है रोज पीना चाहिए. एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रिंक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. एंड आपको बताना है क्या ये सही है या नहीं, एंड आपको इसे फॉलो भी करना है. लेट्स मूव ऑन टू वर्ड सेट. सो कच्चा हाउस इज अ हाउस, a weak house made of light material such as mud, straw and clay. So ये एक weak house है जो कि हल्के फुल्के मटेरियल से बनता है, जैसे कि मड हो गया, स्ट्रॉ हो गया या फिर क्ले. पक्का हाउस क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग हाउस है जो कि ब्रिक से, सीमेंट से, आयरन रॉड से बनता है. नेक्स्ट आता है हाउस बोट. सो हाउस बोट क्या है, ये एक हाउस है जो कि बनता है बोट पे. Next comes quick review. So we feel safe and comfortable in our house. हम अपने घरों में जो है safe और comfortable feel करते हैं. पक्का houses are found in towns and cities. पक्का houses हमें towns और cities में मिलते हैं. Houseboat is a kind of floating house. Houseboat जो एक तरीके का floating house है. A good house should have proper drainage system. एक जो अच्छा घर होता है उसमें बहुत ही अच्छा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता है. वी वियर आवर यूनिफॉर्म टू गो टू स्कूल, हम स्कूल जाने के लिए अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं. एंड वी वियर वार्म वुलन क्लोथ्स इन विंटर, विंटर में हम वार्म वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज व्हिच इज पुट ऑन योर थिंकिंग कैप. सो ए एक्सरसाइज इज darken the correct option in OMR sheet. First one is tents are made up of cotton, canvas, wood, none of these. Correct answer is canvas. Second one, caravan is made on poles, water, wheels, roofs. Correct answer is wheels. Third one, a good house should be clean, airy, both, none. Correct answer is both, clean and airy. Fourth one is we wear our dash to go to school, dress, clothes, uniform or shoes. Correct answer is
uniform. So these are the answers that you have to write down. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks with correct words from the box. Here the first one is, a house protects us from heat, cold and wild animals. Second, kacha houses are not very strong. Third, flat roofs can also be made of tiles. Fourth one, tent can be moved and fixed at other place. Fifth, a good house should have proper drainage system. Sixth one, we wear cotton clothes in summer. Let's move on to C exercise, which is take the correct statements and cross the wrong ones. First one is, tent is also called house on wheels. This is wrong. Second, igloos have dome-shaped roofs. Correct. Third, in villages, people live in huts. Correct. Fourth one, we wear clothes to cover our body. Correct. Fifth one, we wear warm clothes in monsoon. Wrong. Sixth one, houseboat is a kind of floating house. This is correct. Let's move on to the exercise, which is match the following here. The first one is, kacha houses are temporary houses. Pakka houses are permanent houses. Igloos, Inuits live in them. Caravans are house on wheels. Houseboat is floating house. Let's move on to E exercise, which is answer the following questions. Here the first one is, what are temporary houses? Give examples. So temporary houses are the houses that move from one place to another, and the example is tent. Question number 2, what are permanent houses? Give examples. So permanent houses are the houses that are built at one place for a long time, and the example is apartment. Question number 3, what is the difference between house with flat roofs and sloping roofs? So the houses with flat roofs are built in plain areas, whereas the houses with sloping roofs are built in hilly areas. So these sloping roofs are built so that snow and rain can slope down easily from these, and these at these places there is a lot of rainfall and ice. So that's why these roofs are built here. Now question number 4, what are the characteristics of a good house? So a good house should be clean, it should be airy, there should be proper ventilation there should be windows and doors built properly, and there are other characteristics also that you can write down. Question number 5, which type of clothes should we wear? We should wear clean and well ironed clothes. Question number 6, what do we wear in winters? So in winters we wear woolen clothes. So these are the answers that you have to write down, and with this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.